My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another session on functions and graphs. So, first question of this session, if f is a function such that fx is equal to 0, has 6 distinct real roots, and f of 3 plus 2x is equal to f of 3 minus 2x, then we have to find the sum of all its 6 roots. सारे 6 roots का sum क्या होगा? Property given is that f of 3 plus 2x is equal to f of 3 minus 2x. यानी कि this is holding true for all values of x. Isn't it so? Because if that property is given, that should be holding true for all values of x, and also given that there are 6 distinct real roots for this function fx is equal to 0. Now अगर f of 3 plus 2x is equal to f of 3 minus 2x यानी कि x की जगह पे हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा. सो इफ यू पुट x इक्वल टू 1, let us say, so we can say that f of 3 plus 2 into 1 यानी 3 plus 2 is equal to f of 3 minus 2, which implies that f of 5 is equal to f of 1. Isn't it so? Now, since fx is equal to 0 has 6 distinct real roots, let us assume that एक रूट हमारा है. सिंस हमें ये जो इक्वेशन गिवन है ये गिवन है 3 plus 2x and 3 minus 2x के फॉर्म में, so let's assume कि वन रूट, let us say alpha is equal to 3 plus 2x1. This is one of the roots. एक हमारा रूट है 3 plus 2x1. And if alpha is one of the roots, then can we say कि f of 3 plus 2x1, since alpha is a root, so f of alpha, f of 3 plus 2x1, this will be equal to 0. And now applying the property, we can also say that f of 3 minus 2x1, this will also be 0. And if this is also 0, so 3 minus 2x1 is another root in that case. अगर 3 plus 2x1 हमारा एक रूट है तो 3 minus 2x1 दूसरा रूट होगा. तो sum of these two roots क्या आ जाएगा? Let us say this was alpha 1, so this was alpha 1, this is alpha 2, तो alpha 1 plus alpha 2. This will be 3 plus 2x1 plus 3 minus 2x1. So 2x1 gets cancelled out. 6 आ गया सम हमारा for alpha 1 plus alpha 2. Similarly, if 3 plus 2x2, let us say alpha 3 एक और रूट है हमारा, that is 3 plus 2x2. And if that is equal to 0, तो 3 minus 2x2 भी तो हमारा उसका वैल्यू एट f, that will also be equal to 0. यानी कि another root we are finding that alpha 3, assume कि alpha 4 भी मिल गया हमको, और यहाँ पे alpha 3 plus alpha 4 क्या होगा? Again it will be equal to 6. And by the same logic, alpha 5 plus alpha 6, that will also be equal to 6 only. So sum of all 6 roots will be equal to 18. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, सम ऑफ ऑल 6 रूट्स विल बी इक्वल टू 18, बिकॉज बेसिकली हमारे पास हर एक केस में हमें क्या है, दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल रही हैं. वन वैल्यू 3 plus 2x1, value of f at 3 plus 2x1 is same as value of f at 3 minus 2x1. Isn't it so? यानी कि उन दोनों वैल्यूज का जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6. एंड सिमिलरली ऐसे हमें टोटल 6 रूट्स हैं तो टोटल सम विल बी 18 ओनली. इज दैट क्लियर? और ये ग्राफ हमारा अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ग्राफ हमारा सिमेट्रिकल है 3 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. ठीक है, बिकॉज 3 प्लस समथिंग एंड 3 माइनस समथिंग के वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रहा है. भाई 2x भले मेंशनड है, बट द पॉइंट इज कि 3 प्लस समथिंग और 3 माइनस समथिंग का हमारा जो वैल्यू है दैट इज आइडेंटिकल. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Next is fx is a linear function such that f applied 4 times on x, this is equal to 256x plus 255. So we have to find value of f inverse of 11. Value of f inverse of 11, तो क्या वैल्यू आएगा? Pause the video and try to solve it. fx is a linear function. Linear function implies that fx will be in the form ax plus b. And we need to find f4x.
तो एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी, एफ टू एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एफ एक्स दैट विल बी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी. Input now is ax plus b, so a into ax plus b plus b, which will be a square x plus ab plus b, and hence f3x क्या होगा, f of f2x, f2x will be input, यानी कि f of a square x plus ab plus b, f3x will be f of f2x, और f2x हमारा इनपुट में आ जाएगा, और इनपुट कहाँ पे आने वाला है, a into input plus b, अल्टीमेटली यही तो हमारा fx है, isn't it so? तो a into this value, a into f2x plus b, this will be a into a square x, which will be a cube x प्लस a into a b प्लस b, और फिर फाइनली हमारा b भी आएगा लास्ट में, तो प्लस a into a b यानी कि a स्क्वायर b प्लस a b प्लस फाइनली b. Similarly f4x, again f of f3x, so f3x will be our input this time, so a into input plus b, so a into a cube x will be a4x a to the power 4 into x plus a into a square b, that will be a cube b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी, और लास्ट में एक बी और ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बी आवर कंप्लीट एक्सप्रेशन. ओके, एफ फोर एक्स बिकम्स इक्वल टू ए टू द पावर 4 टाइम्स एक्स प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी, जहाँ बी कॉमन आ जाएगा तो दिस विल बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1. नाउ कंपेयर दिस विद गिवन वैल्यू 256 times x plus 255. Compare the coefficients. So a to the power 4 becomes 256 and b into a cube plus a square plus a plus 1 becomes 255. So if a to the power 4 is 256, तो क्या वैल्यू पॉसिबल है हमारे लिए, if a to the power 4 is 256, which is basically 4 to the power 4, so a will be equal to plus minus 4. a can be plus 4 or minus 4, isn't it so? ठीक है, और फिर हमारे पास b इंटू ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1. ओके, तो इफ a इज प्लस माइनस 4, अच्छा दो केसेस यहाँ पे बन रहे हैं, तो a कैन बी प्लस 4 और माइनस 4. ओके, सो b इंटू इफ a इज प्लस 4, in such a case this will be b into 64 plus 16, that is 80 plus 5 85, b into 85, this is 255, and hence b will be equal to 3. एंड सेकेंड सैनरियो में इफ a इज माइनस 4, तो माइनस 64 प्लस 16 यानी कि माइनस 48 माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस 52 प्लस 1, तो 51, b इंटू 51 माइनस 64 माइनस 4 माइनस 68 प्लस 17, तो माइनस 51 माइनस का 51 आएगा, तो b इंटू माइनस 51 दैट इज इक्वल टू 255, एंड इन दिस केस b विल बी इक्वल टू माइनस 5. यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं एक्सप्रेशन की, दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि एफ एक्स कैन बी, फर्स्ट केस में एफ एक्स विल बी a इज इक्वल टू प्लस 4 b इज इक्वल टू 3, यानी कि 4x प्लस 3, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5. इनमें से हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है एफ एक्स का, बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल, बिकॉज कोई और एडिशनल कंडीशन तो गिवन नहीं है, और क्वेश्चन पूछ रहा है एफ इनवर्स ऑफ 11 क्या होगा. तो बेसिकली 11 हमारा, इफ एफ इनवर्स ऑफ 11 इफ दैट इज इक्वल टू सम वैल्यू a, so that implies that f of a should be equal to 11, isn't it so? तो f इनवर्स x निकालने की जरूरत नहीं है, इफ f इनवर्स ऑफ 11 पूछा है, so if that is equal to a, तो f of a will be equal to 11, तो हमें बस f of a equal to 11 पुट कर देना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाने वाली है. तो इन द फर्स्ट केस दिस विल बी 11 is equal to 4x plus 3, so 4x will be equal to 8, x will be equal to 2, and in the second scenario 11 will be equal to minus 4x minus 5, तो 11 plus 5 16, यानी कि x will be equal to minus 4. So either x is equal to 2 or x is equal to minus 4, depending upon which value of f(x) we are taking. Is that clear? ठीक है, and both values are possible in the given condition. Okay, next question करते हैं. Next one.
question is that we have to find sum sigma log of k on the base 2 greatest integer function of log of k on the base 2, and we have to take this sum for from k is equal to 1 to k is equal to 100. What will be value of this sum? Pause the video and try to solve it. इस सम का वैल्यू क्या होगा? log of k on the base 2 का इंटीग्रल पार्ट ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो लेट अस ऑब्जर्व अ फ्यू वैल्यूज टू स्टार्ट विद. पैटर्न समझते हैं, उसके बाद में फिर सॉल्व करेंगे. तो k इज इक्वल टू 1 पुट करो, दिस बिकम्स log of 1 on the base 2 which will be equal to 0. Next value, log of 2 on the base 2, this will be equal to 1. Isn't it so? तो इंटीग्रल पार्ट भी क्या होगा हमारा? इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा? पहले वाले केस में 0 ही आएगा और सेकेंड वाले केस में 1 आएगा. इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 दैट इज 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 दैट इज 1. इफ log of 3 on the base 2, तो दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग. 1 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा, बिकॉज 2 स्क्वायर क्या है? दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है कि 2 की कौन सी पावर होगी जो कि हमें वैल्यू 3 देगा, विच विल बी बिटवीन 1 and 2. तो दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग. तो इंटीग्रल पार्ट विल बी इक्वल टू 1 ओनली. नाउ log of 4 on the base 2, 4 is 2 स्क्वायर, तो एग्जैक्टली 2 वैल्यू मिलेगा और 2 का इंटीग्रल पार्ट विल बी 2 ओनली. देन log of 5 on the base 2, this will be 2 point something, 2 point something, integral part will be equal to 2 only, and so on. नेक्स्ट चेंज कब आएगा? जबकि हमारा log of something on the base 2 becomes equal to 3, यानी कि 8 पे नेक्स्ट चेंज आने वाला है. नेक्स्ट चेंज हमारा आएगा when log of 8 हम कैलकुलेट करेंगे on the base 2, that will be equal to 3. तो वहां से उसके बाद में इंटीग्रल पार्ट हमारा 3 आने लगेगा. फिर नेक्स्ट चेंज कब आएगा भाई? जब हम लेंगे log of 8 on the base 2, this will be equal to 3. यहाँ से हमारा इंटीग्रल पार्ट 3 आने लगेगा. फिर नेक्स्ट चेंज आएगा हमारा when टू द पावर 4 वैल्यू आएगा, यानी कि log of 16 on the base 2, दिस विल गिव अस वैल्यू 4. तो इंटीग्रल पार्ट भी हमारा 4 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट चेंज आएगा टू द पावर 5 पे, यानी कि log of 32 ऑन द बेस 2, दिस विल गिव अस वैल्यू इक्वल टू 5. तो इंटीग्रल पार्ट के बाद भी वैल्यू हमारा अल्टीमेटली 5 ही आएगा. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? टोटल हमारे 100 टर्म्स है. सम टर्म्स विल बी गिविंग अस वैल्यू इक्वल टू 0 विच इज ओनली वन टर्म. वन टर्म विल बी, टू टर्म्स बेसिकली विल बी गिविंग अस वैल्यू इक्वल टू 2. देन नेक्स्ट कुछ टर्म्स हमें वैल्यू इक्वल टू 2 देंगे, फिर कुछ टर्म्स हमें वैल्यू इक्वल टू 3 देंगे, फिर कुछ देंगे वैल्यू इक्वल टू 4, सम वैल्यू इक्वल टू 5, एंड सो ऑन. बस यही प्रोसेस हमें पैटर्न अपना जो है समझना है और अकॉर्डिंगली फिर एंड में सॉल्व कर लेना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ के, देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ log of k on the base 2. So if k is equal to 1, तो इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू इज इक्वल टू 0. इफ k is equal to 2 और 3, वैल्यू ऑफ log of k on the base 2 is from 1 to 2. ठीक है, बिटवीन 1 and 2. तो इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू हमारा 1 ही आएगा. when k is from 4 to 7, क्योंकि वैल्यू कब चेंज हो रहा है? 1 टू द पावर 0, फिर 2 टू द पावर 1, फिर 2 स्क्वायर पे वैल्यू चेंज हो रहा है, फिर 2 क्यूब पे यानी कि 8 पे, फिर 16 पे, फिर 32 पे, फिर 64 पे और 128 पे होता है. बट हमें चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक ही जाना है, तो इसके बाद में वैल्यू फिर चेंज होगा नहीं. ठीक है. 2 से लेकर 3 तक सेम वैल्यू रहेगा, 4 से लेकर 7 तक सेम वैल्यू, फ्रॉम 8 to 15 सेम वैल्यू, 16 से 31 सेम वैल्यू, 32 से 63 सेम वैल्यू और फिर 64 से 100 तक सेम वैल्यू. 2 से 3 तक इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू विल बी 1, 4 से 7 2, देन 3, देन 4, 5 एंड 6 फाइनली. कितने नंबर्स आएंगे पहले केस में? फर्स्ट केस में 0 वैल्यू आएगा सिर्फ एक नंबर का, 0 इंटू 1, यानी कि टोटल सम विल बी इक्वल टू 1. और 1 वैल्यू आएगा फॉर 2 and 3, 2 वैल्यूज, तो 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा. 2 वैल्यू आएगा 4 से लेकर 7 तक, 4 वैल्यूज के लिए, 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8. और 3 वैल्यू विल बी देयर फॉर 8 वैल्यूज, तो 3 इंटू 8 24. 4 वैल्यू विल बी फॉर 16, पैटर्न भी देख पा रहे हो 1 2 4 8 16 64. एंड 5 वैल्यू विल बी देयर फॉर 32, तो 5 इंटू 32 160. फाइनली 6 वैल्यू रहेगा फ्रॉम 64 टू 100. तो 64, 65 प्लस 35, 37 नंबर्स के लिए. 6 इंटू 37 विल बी 222. The total sum of all these will be 1 plus 2 plus 8, 11, 35, 99, 259, एक सेकेंड, 2 plus 1, 11, 35, ठीक है, 99,
259, 459 और 22 और वैल्यूज हैं, तो 481। एक सेकेंड क्या किए हैं भाई, 0 × 1 को 1 कैसे लिख दिया है? 0 × 1 तो 0 ही आएगा ना, तो टोटल सम हमारा आएगा 480, नॉट 481। आंसर विल बी 480। क्लियर है? ठीक है, क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बट बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन तुम्हारे लिए देता हूँ कि लेट अस से वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सो ऑन टिल इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 80. So what will be the sum? Mention the answer in comments. क्या सम आएगा हमारा इस केस में? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ f of x is equal to a into x to the power 6 minus b into x to the power 4 plus 2x cube plus cx square minus 24x plus d, and also given that f of 4 this is equal to 95. So find what will be the value of f of minus 4. f of minus 4 का वैल्यू क्या होगा? अगर f4 गिवन है हमें इक्वल टू 95, fx इज a into x to the power 6 minus b into x to the power 4 plus 2x cube plus c into x square minus 24x plus d. ओके, सो fx तो गिवन है हमें, और हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? f4 गिवन है, f of minus 4 निकालना है। यानी कि एक तरह से समझो fx की वैल्यू हमें गिवन है, f of minus x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इफ f of x इज दिस वैल्यू, तो f of minus x क्या हो जाएगा? a into minus x to the power 6, और minus x to the power 6 will be same as x to the power 6, यानी कि f of minus x first term will be a into x to the power 6. Similarly, for all the even powers, so minus b into x to the power 4, because minus x to the power 4 will be same as x to the power 4 plus 2x cube, ये जो है ये चेंज होगा, ठीक है? सो दिस विल बी minus 2x cube, बिकॉज ऑड पावर है, इवन पावर के लिए अगेन प्लस सी एक्स स्क्वायर, अगेन 24x माइनस 24x से प्लस 24x हो जाएगा, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म भी सेम ही रहेगा। तो जो टर्म्स हमारे आइडेंटिकल रहने वाले हैं उनको क्लब कर दो, साथ में ज्वाइन कर दो। तो बेसिकली दिस बिकम्स a into x to the power 6 minus bx to the power 4 plus cx square plus d minus bx to the power 4 plus 24x, और एक सेकेंड x to the power 4 तो आ गया, माइनस 2x क्यूब आएगा, minus 2x cube plus 24x. This will be our f of minus x, isn't it so? तो डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है सिर्फ फॉर दीज टू टर्म्स, बाकी टर्म्स तो आइडेंटिकल है, सेम एज f(x). सेम अप्लाइज टू f4 एंड f minus 4. f of 4 और minus 4 में फर्क क्या होगा? f4 में these फोर टर्म्स विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल, और लास्ट के टर्म्स क्या आएंगे? तो लास्ट में आएगा हमारा प्लस 2x क्यूब, यानी कि प्लस 2 into 4 क्यूब प्लस और माइनस 24x, तो माइनस 24 into 4, एंड f of minus 4 में the first 4 terms, these terms will be same as fx प्लस, और प्लस नहीं, लास्ट में ये माइनस में आएगा। ये जो वैल्यू हमारा आने वाला है, यही वैल्यू हमारा यहाँ प्लस में आएगा, और इफेक्टिवली इधर हमें माइनस में मिलने वाला है, यही सेम वैल्यू। तो बस इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितना आ रहा है। दिस वैल्यू इज 2 into 4 क्यूब, यानी कि 64 into 2, 128 minus 96, so this is plus 32, so here this will be minus 32, ठीक है? सो f4 में दिस f4 इज इक्वल टू 95 जब आ रहा है, जबकि हमने 32 प्लस किया है इसमें, तो 95 minus 32, यानी कि दिस पार्ट will be having value 95 minus 32, which is 63, and now we are subtracting 63 minus 32, so our answer for f minus 4 will be 31. f of minus 4 will be equal to 31.
Isn't it so? क्लियर है? f माइनस 4 हमारा इस केस में 31 हो जाएगा. ओके, ठीक है. तो दिस विल बी आवर आंसर. इतने क्वेश्चंस रखते हैं इस सेशन में. आई बिलीव जो भी डिस्कस समझ में आएगा. एंड इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन व्हाटसोएवर, make sure to comment out that out and also give a feedback in the comment section. And if you like this session, then make sure to hit the like button as well. That's all for this session. Bye, take care and keep learning.